Good afternoon, friends. Welcome back to Feni for the Soul. We this time we have a Sant Kabir special. Now, Sant Kabir was the noted mystic poet saint of the 15th century India, born in Varanasi in a family of Muslim weavers. Sant Kabir in later years followed the works of a poet saint called Ramananda and developed his own style of poetry. He was particularly known for demolishing, the conservative Hindu and Muslim religious beliefs of his time, and he proclaimed that God was available and present, omnipresent in all human beings and every molecule of nature. For this, of course, Sant Kabir received bouquets and brickbats. However, over the centuries, folk singers have kept Sant Kabir alive with their wonderful rendition of his poetry and songs. I have invited two folk singers on this program. One is Padma Shri Prahlad Singh Tipania from the Malwa region of Madhya Pradesh, who has gained fame as a singer of Kabir tradition. And the second is my own paternal aunt, Suniti Chandavarkar of Pune, who is 89 years young and a ghazal singer of repute, and who also has been popularizing Kabir in her own way. So, welcome to the show, and be sure to like, share, and subscribe to this channel. Good morning, folks. Welcome back to Feni for the Soul. We are today, we have a very special guest. Our whole program is on Sant Kabir, famous and very popular mystic saint of the 15th century India. So, our first guest for this two-part program is none other than Padma Shri Prahlad Singh Tipania. Now, he's there on the screen. Namaste, Prahlad Singh ji. Namaste, namaste. प्रणाम, नमस्ते, आप सबको नमस्ते. Namaste. Prahlad Singh Tipania is one of the most popular folk singers of the Sant Kabir tradition of song and poetry across India, and the world. And he hails from a small village called Lunia Khedi. Lunia Khedi is about 100 kilometers from Indore city in Madhya Pradesh. It's a very pretty small village, and that's where he lives. Today we are lucky he's traveled to Indore to his son Ajay's house to give us this interview. So he's also, of course, a Padma Shri awardee. So मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले पाठशाला में टीचर थे, गवर्नमेंट पाठशाला में, तो पूछना ये है कि संत कबीर आपके जीवन में कब और कैसे उन्होंने प्रवेश किया? वैसे तो कबीर हमारे जीवन में जब मैं छठी, चौथी, पांचवी की किताबों से एक कबीर की साखियों के रूप में एक पाठ होता था जिसमें 3-4 साखियां रहती थी, तब से कबीर उस रूप में थे, और जिसमें गुरु गोविंद दोनों खड़े, आपको भी याद होगा, किनके लागू पाए, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, या चलती चक्की दे करिए. तो उस समय तक तो कबीर हमारे जीवन में केवल 10 नंबर के था कि संदर्भ सहित अर्थ लिखो, 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे. जब मैं स्वयं शिक्षक बन गया, और शिक्षक बनने के बाद में स्कूल में पढ़ाने का काम मेरा विशेष रूप से गणित और विज्ञान रहा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा. तो उस समय तो कोई हिंदी पढ़ाने का मिडिल स्कूल में कुछ इस तरह का संयोग नहीं था. परंतु कबीर से वाकई रूप से जो लोक में रचा बसा है, उससे हमारा परिचय जो हुआ है वो 78 में हुआ, 78 में. और वो भी एक कार्यक्रम के दरमियान हम एक जगह गांव में, मैं मिडिल स्कूल काठबड़ौदा में शिक्षक था, और एक पूर्णिमा के दिन एक पड़ोस के गांव में जो देवास जिले का है, गोरखेड़ी, वहां पर एक भीमपुरी महाराज रहते थे. तो वहां पर हर पूर्णिमा को एक कार्यक्रम, वो भजन वजन गाते थे, तो हमें भी बुलाया था. वहां हमने पहली बार उनके भजन सुने, और वो जो भजन गा रहे थे उसमें हारमोनियम या तबला नहीं था, उसमें उनके पास में एक अलग तरह का साज था जो हमने उसके पहले कभी नहीं देखा. तो वो हमने सुना उस दिन पहली बार, और उनके भजन भी सुने. तो उन्होंने मीरा के भी गाए, और कबीर के भी गाए, और रामदेव जी के भी गाए.
कबीर के भजन भी जब गाए थे, जब उनका कार्यक्रम खत्म हो गया तो उसके बाद में हमने उनसे पूछा कि ये साज क्या है, ये जो तुम बजा रहे थे इसका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि इसको एक ने बोला उसको साहब वीणा के वीणा, और एक ने बोला कि साहब के शारदा के, और एक ने बोला इसको तंबूर के साहब के तंबूर के। इस तरह से उन्होंने नाम बताया। फिर हमने उसको उठा करके भी देखा, हल्का था परंतु बहुत सुंदर आवाज थी। हमें उसकी आवाज ने इतना अभिप्रेरित किया, हमें ये मालूम नहीं था कि हम इसके मार्फत कबीर को गाएंगे। तंबूर की आवाज से हमें इतना लगा कि इसको सीखना चाहिए। तो फिर मैं उस गोरखेड़ी चला गया उस तंबूर की वजह से। फिर वहां रहा मैं 6-7 साल, और जब मैं उसको सीख रहा था तब उन्होंने कहा कि इसके साथ गाओ तो ये तंबूर जल्दी बजाना आएगा। लगा कि कबीर के और संतों की वाणी जो है वो केवल गाने की नहीं है, वो हर इंसान के जीवन का एक दर्शन है, और प्रैक्टिकली दर्शन है, खाली कहने वाला दर्शन नहीं। उनका जो दर्शन है वो प्रकृति में भी और हमारे जीवन के भी ऊपर है। और हमारी गाड़ी कबीर के प्रति और संतों की वाणी के प्रति चली, और उसी के दरमियान देखिए आपके भी दीदार हुए थे, नहीं तो हम कहाँ पुनः आते यदि थोड़ा बहुत नहीं गाते तो। और वो इसलिए क्योंकि कबीर की एक साखी है कि गाया बिन पाया नहीं, और अणगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहेब हाल हजूर। तो थोड़ा बहुत गाना सीख गए, तो इसकी वजह से पूरे आप जैसे मनीषियों के, आप जैसे सजग प्रहरियों के और संतों के और साधुओं के या जनमानस के दर्शन करने का मौका मिला, और अपने कबीर की बात उनके तक पहुंचाने का इस शरीर के मार्फत ये उपक्रम चला। बढ़िया बढ़िया। अब हमारे भारत देश में जो वातावरण है, तो संत कबीर का महत्व आज क्या हो सकता है, और ये क्यों जरूरी है कि हम लोगों ने उनको पूरी तरह से पहचानना चाहिए संत कबीर को आज के वातावरण में? जी जी जी। वर्तमान समय में साहिब मैं सोचता हूं कि वो बहुत ज्यादा एक तरह से जरूरत है कबीर की वाणी की, क्योंकि कबीर ने एक निष्पक्षता के साथ में पूरे कायनात के बारे में अपनी बात रखी है। उन्होंने किसी एक मजहब या किसी एक धर्म या किसी एक पंथ या संप्रदाय की बात नहीं करी। सच बात। इसलिए वर्तमान समय में कबीर एक ऐसी सामयिक चीज है जिन्होंने अल्लाह के बारे में, जिन्होंने राम के बारे में, जिन्होंने देवी देवताओं के बारे में एक प्रैक्टिकली अनुभव करके कहा। नहीं, वो राम के बारे में कहते हैं कि रग रग में बोले राम जी, मन मेरा राम तो सब में है। वो कहते कि सब घट मोरा साइया, मेरा साईं मेरा सदगुरु तो सब घट में है, खाली हिंदुओं में नहीं है, या केवल मुसलमानों में नहीं है, या केवल वो मनुष्यों में नहीं है, वो तो सब जीव मात्र में है। जिस इंसान की थॉट इतनी ऊंची हो, उसको आज भी हमारे भारत में कबीर साहब की वाणियों को या कबीर साहब के भजनों को लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य कहिएगा ये उनकी समझ और ना समझ का। वर्तमान समय में कबीर और अन्य संतों की जो मानव मात्र के लिए जो प्रासंगिकता है वो बहुत जरूरी है, और उसके मार्फत हम लोगों के बीच में दूरियां कम कर सकते हैं, लोगों के बीच में प्रेम और सद्भाव का प्रवाह कर सकते हैं, ताकि हमारे बीच में दूरियां कम हो जाए। क्योंकि कबीर साहब ने इसी प्रेम और प्रत्यक्ष अनुभूति के मार्फत लोगों के बीच की दूरियों को दूर किया। उन्होंने हमेशा मिलाने का काम किया, उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने जोड़ने का काम किया। और दुर्भाग्य कहिएगा हम धर्म के नाम के ऊपर एक इंसान को दूसरे को तोड़ने में लगे हैं, एक दूसरे को बांटने में लगे हैं, चाहे वो शब्दों के आधार पर हो, चाहे वो मजहबों के आधार पर हो, चाहे धर्मों के आधार पर हो। ये आप जैसे चिंतक और आप जैसे उस सर्वज्ञ का एहसास जनमानस के बीच में रखने वाले महानुभावों के द्वारा पूरी कायनात के लिए संदेश जाना चाहिए कि कम से कम इसको खुद एहसास करके देखें और उसके बाद में अपनी बात को रखें तो बहुत अच्छा होगा। सच सच। शुक्रिया शुक्रिया प्रहलाद प्रहलाद सिंह जी। 2003 साल में ना आपने अमेरिका की दौर की, और वो बहुत जी बढ़िया दौरा था आपका। उस तजुर्बे के बारे में कुछ बताइए ना थोड़ा। हाँ, 2003 में हम पहली बार अमेरिका जब गए तो डॉक्टर लिंडा जो स्टैनफोर्ड में थी, तो उनके उनके मालवा के ऊपर उन्होंने काम किया था। कुमार गंधर्व को उन्होंने सुना था, तो कुमार गंधर्व और मालवा फोक सॉन्ग का। और उसके बाद में जब हम वहाँ गए, आईसीसीआर के मार्फत गए थे,
तो हम लगभग 2.5 महीने रहे वहां पर 20 यूनिवर्सिटियों में और 35 कार्यक्रम हुए। रहा था साहेब कि अमेरिका में लोग उसको करके देखने पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कबीर का विचार जो है, कबीर का जो भजन है और कबीर की जो साखियां हैं, जिनको आज लोग दोहे या कविता कहते हैं, मैं जहां तक सोचता हूँ कि उनके दोहे और कविता उनका साक्ष्य है, वो प्रैक्टिकली अनुभव है जो उनके जीवन में घटा और वो आज सबके जीवन में घट सकता है या सबके जीवन में उसका एहसास हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इस वजह से वहां पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा और उसी के बाद में हम कई बार अमेरिका गए, जिसमें लोगों की उत्सुकता, लोगों की कबीर के प्रति जो एक रुझान है वो काफी बड़ा है। कि संत कबीर का कौन सा दोहा जो है जो सबसे प्यारा है आपका, और ये हमको गाकर सुनाए आप, जैसे मैंने कहा। जी जी जी। तो मैं आपको एक छोटा सा भजन सुना देता हूँ और जिसमें वो ये है कि भजन या जतन, हम जतन करें शरीर का भी और पूरी कायनात का भी, पूरे कायनात का भी संरक्षण करना चाहिए, जिसमें वनस्पति, पानी। अभी देखो नहीं, लोग झाड़ काट रहे हैं और अभी ऑक्सीजन की कमी से लोग कितने मरे, ये आपको पता है ही सही। ये सब प्रकृति के दोहन की वजह से होता है शायद, इसलिए प्रकृति का संरक्षण भी करें। तो कबीर साहब ने भी प्रकृति के संरक्षण के बारे में, अपने स्वयं के संरक्षण के बारे में, अपने इसके जतन के बारे में बहुत बात कही। तो एक मैं छोटा सा भजन सुना देता हूँ और उनकी एक साखी बहुत अच्छी है, वो आपको याद है ही। ए जी सब घट मोरा साइया और सुनी से जन को, बलिहारी उणा घट की सुजा घट पर घट हो। पर ऐसी लाली चढ़े नहीं तब मालूम पड़े, लाली मेरे लाल की और जित देखूं उतलाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। इसलिए जतन करे तन का, मन का, धन का, देश का, पूरी दुनिया का। जतन दिन बावरा रे मेरे गाने खेत गाना। वो मृत कौन है आप जानते हैं? हाँ, जतन दिन बावरा रे मेरे गाने खेत गाना, मेरे गाने खेत गाना। जतन दिन मिर्गा खेत गाना, जतन दिन बावरा रे मेरे गाने खेत गाना। हाँ, पाती रगला 25 में रगले या में 3 सितारा, पाती रगला 25 में रगले, अरे या में 3 सितारा। अपने अपने रस के भोगी वो, अपने अपने रस के भोगी, छूक रहा न्यारा तारा जतन दिन बावरा रे गाने खेत गाना। 5 तत्व 25 प्रकृतियां और 3 गुण सबके अंदर है, चाहे वो किसी धर्म को माने या ना माने या किसी देश का हो। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए स्वयं को करना पड़ेगा। इसलिए कहा है, चल के झुंड मेरे, चल के झुंड मेरे काकार आया, अरे बैठा खेत मजारा, उड़ के झुंड चिरकन कारे आया, अरे बैठा
बादीले भागे, मुँह कर बादीले भागे, मुख वही रखवाला जतन बावरा रे मेरे गाने ये दिलवारा। इसलिए और वो मृग ना तो मरते हैं न तारने से डरते हैं, परंतु हमें मेहनत करना पड़ेगी। ना हमारे विषयों को हम खुद ही हमारी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। इसलिए कहा है, मारे 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 वो डरे नहीं तारे, अरे बिगड़े नहीं बिगाड़ा, मारे मारे वो डरे नहीं तारे, अरे बिगड़े नहीं बिगाड़ा। अति प्रपंची महादुखदाई, अति प्रपंची महादुखदाई, तीन लोक पचिहारा जगन बावरा रे मेरे गाने ये तू जाना। अंतिम में कबीर कहते हैं कि ये समझ परख होना चाहिए। हाँ, ज्ञान का फूला पुरस्कार चुका, कोई गुरु शब्द रखवाला। हाँ, ज्ञान का फूला पुरस्कार चुका, कोई गुरु शब्द रखवाला। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, पहुंचे गुरुमुख प्यारा जतन बावरा रे मेरे गाने के दिलवाड़ा, जतन बावरा रे मेरे गाने के दिलवाड़ा, मेरे गाने के दिलवाड़ा, मेरे गाने के दिलवाड़ा। इस तरह से जी जी कबीर के हर पदों में ऐसा मर्म है जो पूरी कायनात के लिए होता है। वो किसी एक मजहब या किसी धर्म या किसी पंथ या किसी जाति या स्त्री पुरुष के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो वो सबको प्रेम के डोर में बांध करके मिलाने का काम करते हैं। और इसलिए वो ये भी कहते हैं कि जा घट प्रेम न संच रे, और सो घट जान मसान, और जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। तो इसलिए उनका प्रेम का संदेश, उनका अनुभव और अनुभूति का संदेश पूरे कायनात के लिए है। और राहुल जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने कबीर को सुन करके हमें बहुत लंबे समय के बाद आपका दर्शन का भी मौका मिला। आपके पूरे टीम को और आपके इस साधुता को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं। और यही आशा और अपेक्षा है कि आपके मार्फत भी पूरी कायनात के लिए कबीर और संतों की वाणी का प्रवाह हो, ताकि हमारे बीच की नासमझियां दूर होकर के हम प्रेम और सद्भाव के साथ में पूरा कायनात अमन चैन के साथ रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साहेब बंदगी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रहलाद जी। Good afternoon, folks. Welcome back to Feni for the Soul for part 2 of our special show on Sant Kabir. This time we have my own paternal aunt Suniti Chandavarkar, all the way from Pune. And namaste, Suniti Pachi. Namaste. Namaste. So I'm happy and very proud to say that my aunt is 89 years young. And she's a multifaceted woman who has represented India in volleyball and the team which went to play in Pakistan, erstwhile Persia, and the Soviet Union. So she's been a sportswoman and for many, many decades, a very fine ghazal singer. Recently, or more recently, she's been concentrating on Kabir and, studying Kabir and singing Kabir. So that's how we want to learn, listen to Kabir from her. So Suniti Pachi, this is our Konkani terminology, of course, for aunt. So Suniti Pachi, tell me, when did Kabir come into your life, and what's your personal equation with Kabir? Rahul, from my younger days as children, we were exposed to Kabir's works and his dohas. I had an inherent liking for poetry, and we were exposed to music at a very young age.
because my dad was very fond of classical music, and we grew up listening to different types of Hindustani music and artists. These artists rendered bhajans of great saints from India, and that's how my liking for Kabir and bhajans grew. Later, when I went to college, Hindi literature was my main subject. And here I learned about Kabir, his life, and all the finer nuances of his poetry. So I can say that I have liked his work almost for most of my life, and has, at a personal level, Kabir and his poetry has been an integral part of my spiritual journey. Oh, wonderful, wonderful. So, my immediate question, connected question is, how relevant is Sant Kabir in today's modern times? In today's turbulent times, when human values and integrity is so important to withhold, Kabir's teachings really amplify qualities of ahimsa, which is kindness and tolerance; satya, which is being true to self; and equality, that is samabhav, which is amongst all human beings. That was Kabir's philosophy, and that is, I think, that is the most relevant thing in today's life now. Yeah. So, Suniti Pachi, just a few days back, you directed and coordinated an entire program, online program on Kabir, music program on Kabir, on an online platform for the global Konkani community. So, how was that experience? Tell us about that experience. With the pandemic, at my age, 89 years, I had to learn how to use Google Meet, and and I could continue training my group of singers, since we could not meet in person, and that was a very big challenge, huge challenge for me. Then I also had a challenge of finding the right way to convert the narration, which was originally written in Hindi by me, into a regional language, Konkani. I was worried that the finer nuances of the words should not get diluted. However, it turned out well with Mr. Anand Naimpalli's perfect translation of Kahe Kabir narration. Wonderful. That's So good to hear. So now, finally, as I have requested you, I know your harmonium is close by. Please sing us some Kabir.
Wonderful, wonderful. So thank you so much for this rendition, of the Dohas. Kabir's Dohas. Wonderful, Suniti Patsi. I hope you liked it. Yes, yes. I'm sure all the audiences will also like it. Lovely. So thank you for spending this time and, energy to be with us. I'm sure Sant Kabir will bless us and, we take forward his learnings and teachings. Thank you. Thank you.